नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही हैं और वो राज्यपाल को भी निशाने पर ले रही हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल केंद्र के निशाने पर उनके सरकार में दखल दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहते हुए कह दिया कि गवर्नर एक करप्ट व्यक्ति है, भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति है और वो जैन हवाला केस में उनके खिलाफ चार्जशीट थी। ऐसे व्यक्ति को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने आज ममता बनर्जी ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो 3 बार केंद्र को पत्र लिख चुकी हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने के लिए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो काफ़ी आक्रामक अंदाज में थी ममता बनर्जी। ममता दीदी ने कहा कि ये व्यक्ति बहुत ही करप्ट है। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा ऐसा बहुत कम राज्यों में देखा जाता है जब मुख्यमंत्री सीधे राज्यपाल पर हमला करे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे कोई लिहाज न करते हुए गवर्नर को एक भ्रष्ट इंसान कहते हुए कहा कि जैन हवाला केस में गवर्नर के खिलाफ यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ चार्जशीट थी। आपको बता दें जैन हवाला केस ये 1996 का केस है और उस मामले पे आज ममता बनर्जी ने सीधे आरोप लगाया कि गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ चार्जशीट रह चुकी है। ऐसे करप्ट इंसान को बनाया गया है राज्यपाल। और उन्होंने कहा कि वो लगातार, चूँकि मेरी चुनी हुई सरकार है, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुमत से यहाँ मुख्यमंत्री बनी हूँ, लेकिन राज्यपाल लगातार मेरे काम में दखल देते हैं, अधिकारियों को डिस्टर्ब करते हैं। उनका एक ही मकसद है कि पश्चिम बंगाल को अस्थिर किया जाए और इस मामले पे वो केंद्र सरकार को 3 बार खत लिख चुकी हैं। आइए पहले सुनते हैं ममता बनर्जी को और फिर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी नाराज़ हैं ममता बनर्जी राज्यपाल से। তখন বিজেপির লোকেরা গাড়ি ভাড়া করে 407 ভাড়া করে বাস ভাড়া করে কি করে নিয়ে গিয়ে ওই অ্যাসেম্বল করে, কি করে করে? ডিজাস্টার রুল তাদের জন্য কাজ করবে না? ডিজাস্টার ল তো কাজ করবে। আর এটা যারা উচ্চ পর্যায়ে আছে তাদের আমি রেসপেক্ট দিয়ে বলছি যে আপনারা বিজেপির কথায় কাজ করবেন না, ইম্পার্শিয়ালি কাজ করুন, আমাদের ফুল কোঅপারেশন পাবেন। এই তো রাজ্যপাল দেখলেন তো ঘুরে এলো উত্তরবঙ্গ থেকে, কি করতে গেছিলেন, কত লোককে নিয়ে গেছিলেন। আরও আজকে আবার নতুন টিম গেছে উনি চলে আসার পর, কারণ সেখানে আরেকজনকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাদের সাথে মিট করেছেন? বিজেপির এমপি, বিজেপির এমএলএ, বিজেপির ব্লক সভাপতি। এবং কেন তিনি হঠাৎ করে উত্তরবঙ্গ সফরটা বেছে নিলেন? উত্তরবঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন ছিন্ন ছিন্ন করার খেলায় মত্ত হতে। এবং আমি এটাও জানি আমাকে কেউ কেউ বলেছে, তাদের বলা হয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলো। এটা রাজ্যপালের কাজ নয়। আমি সরি, কতকগুলো কর্তব্য, কতকগুলো ভূমিকা থাকা উচিত। আমি এরকম রাজ্যপাল আগে কখনো দেখিনি। তবুও কনস্টিটিউশন, যতদিন থাকবেন দেখা করব, যতদিন থাকবেন কথা বলবো, এটা আমার কাটছি। তবে ওনাকে যাতে সরিয়ে নেওয়া হয় এর জন্য আমি 3টে চিঠি লিখেছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ভেবে দেখা উচিত, জেদাজেদি না করে। হ্যাঁ বলুন। ওনার তদন্তটা আগে করা উচিত। ওনার তদন্তটা তো আগে করা উচিত। কত লোক গেছে, কত টাকা খরচা হয়েছে, গভর্নর হাউসটা কি হয়েছে, কোন কোন লোক রেগুলার যাচ্ছে, আগে তো এই তদন্তগুলো হওয়া উচিত। জিটিএ তো অলরেডি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারনাল অডিট তো তদন্ত করেছে। আপনারা বিমল গুরুমের সময় দেখেননি যে আমরা তখন বলেছিলাম তদন্ত হবে? তদন্ত হয়েছে। ক্যাগই করতে হবে তার কি মানে আছে? বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিজেরা ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্টারনালি করতে পারে না? আর ওখানে দার্জিলিংয়ের উপরে তো রাগ কেন? জিটিএ থেকেও করে খাবে নাকি বিজেপি? ওনার যা ইচ্ছে উনি তাই বলবেন, যা ইচ্ছে তাই করবেন, এটা আমি মেনে নেব না। কথা বলবো, ফোন করলে কথা বলবো, দেখা করতে চাইলে দেখা করব, সেটা কাটছি আদার দিক। কিন্তু এইভাবে এরকম ডিকটেট করা গভর্নর, প্রত্যেককে ডিকটেট করে বলে দিচ্ছে এটা করতে হবে, একটা অফিসারকে বলে দিচ্ছে ক্ল্যারিফাই করো, একটা অফিসারকে ফোন করে থ্রেট করছে,
you are under scanner, you are under threat, অনেক কিছু বলছে, অনেক কিছু। Your cruel letter is coming. Who is he to say all this rubbish thing? আমি সরি, আমি এতদিন একটি কথাও বলিনি, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হলাম। मैम एक सवाल था, जब उत्तर बंगाल से ये सेपरेट स्टेट की डिमांड उठ रही थी और जो एमपी से डिमांड उठा रहे थे, गवर्नर ने उनसे भी मुलाकात की है इस विजिट के दौरान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास साबुत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है, और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है, खाली बीजेपी का सबका साथ, और जो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप का साथ मिला है, और बोलता है आप लोग आंदोलन छेड़ो। क्यों आंदोलन छेड़ेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। Financial package has been announced by the Indian Finance Minister. I am not talking anything about it. I will ask, please give GST free vaccination and medicine, the equipments first. And number 2, vaccination should be for all, universal. First give the vaccination. Then they say something, but they never implement it. That's why I don't comments about their situation. Ma'am, when everyone was asking for relief, they are giving credit. 1.1 lakh crore credit they are offering. It's not a relief package. They are calling it a relief package, but more it's like a credit. People can borrow it, but people also have to return it. It's not a relief. That's why instead of giving the discredit, instead of giving the credit to the people, they are giving credit for discredit. दीदी, गवर्नर जब गए थे तो सुनने में आ रहा है 40 से 50 लोग गए थे, 15 से 20 गाड़ियां गई थी, वो भी सरकारी खर्चे थे। इस पर कुछ कहेंगे? आप लोग तो सांबादिक है, जर्नलिस्ट है, आप ढूंढ के बेर करो ना, कौन कौन गया था, क्यों गया था, कहाँ से कहाँ घूमा, कौन कौन आया, फिर आज भी कौन लोग गया, उसको पहले 3 दिन दिल्ली में रह के आया, कितना लोग गया, क्या क्या किया, उधर से गुड़गांव का क्यों गया, पूरा आप लोगों ने छानबीन करके देखो। Now, will you make any fresh appeal for the removal of the governor? You have written 3 letters in the past. I have already said, and you know why a man, somebody sent me, because he was a reporter at that time, the journalist, जो यूपी का केस में जिसको खिलाफ में एफआईआर कर दिया, दे सेंड मी द डिटेल्स। एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था, बट दे हैव गॉन टू कोर्ट, क्लियर्ड इट फ्रॉम द कोर्ट, बट अगेन द PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. What do you want to know more? What do you want to more know? No. So do you think we will write? He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Already said. And you know why a man, somebody sent me, because he was a reporter at that time, the journalist, जो यूपी का केस में जिसको खिलाफ में एफआईआर कर दिया, दे सेंड मी द डिटेल्स। एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था, बट दे हैव गॉन टू कोर्ट, क्लियर्ड इट फ्रॉम द कोर्ट, बट अगेन द PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. What do you want to know more? What do you want to more know? No. So do you think we will write? He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption
oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसका बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। हावड़ा जॉइंट केस ওনার নাম রয়েছে, हावड़ा जॉइंट केस 96 সালে। হ্যাঁ, তারপর আচ্ছা চার্জশিটে নাম ছিল, উনি চার্জশিটেড হয়েছিলেন, তারপরে কোর্টে গিয়ে ওরা কোর্ট থেকে ক্লিয়ার করে, ক্লিয়ার করবার পরে আবার রিট পিটিশন হয়, পিআইএল বা রিট পিটিশন কিছু হয়, এবং সেটা এখনো পর্যন্ত পড়ে আছে কোর্টে। পলিটিক্যাল মোটিভেশন নিয়ে করছেন, রাজভবনটা কি বিজেপির অফিস হয়ে যাবে দিদি? আমার থেকে আপনারা ভালো বলতে পারেন, আপনারা তো এতদিন ধরে ওয়াচ করছেন, আমি তো অনেক সহ্য করে ওসব কথা বলিনি। আমরা কি খাবো সেটা উনি ঠিক করবেন, আমরা কি করব সেটা উনি ঠিক করবেন, কোন অফিসার কোথায় যাবে সেটা উনি ঠিক করবেন। উনি নিজেকে কি ভাবছেন? এখানে একটা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট 2 মাস আগে ম্যান্ডেট নিয়ে এসছে, এত ম্যান্ডেট নিয়ে আসার পরেও উনি ডিক্টেট করবেন কেন? সবাইকে ডিক্টেট করেন, আমি নাম বলছি না, অনেক হায়ার অথরিটি থেকে শুরু করে লোয়ার অথরিটি পর্যন্ত সবাইকে ডিক্টেট করেন। হু ইজ হি? হি ইজ মেয়ারলি এ গভর্নর, নাথিং এলস। Is it the way how central government is functioning? Why they will disturb the state like this? Somewhere they are sending governor, somewhere they are sending National Human Rights Commission, somewhere they are sending Tribal Commission, Minority Commission, this and that later, what not? Even pandemic situation also they cannot afford. Why they are not taking action against UP Chief Minister, where hundreds of dead bodies are lying with the Ganges? It's a big crime. There is no number, no record. Why they are only obstructing Bengal and abusing and accusing Bengal? What Bengal have done the wrong thing? What for? They tried, they failed. Even how they organize the election, everybody you have seen, from money to election commission, how they help them, how they capture the administration. Every officer change, every IC change, every observer change. It is just like a party oriented one election. I have never seen like this. It is not the democracy. We fought against the autocrats. But after that, when we won the election, they should have digested it. They should have tolerated it. They should have accepted the तो ये थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्यपाल पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही थी। बहुत ही आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि वो एक करप्ट व्यक्ति हैं और जैन हवाला केस में वो शामिल होते, लेकिन उनको बार बार उनके खिलाफ चार्जशीट हुई थी, लेकिन उनको राज्यपाल बना दिया गया। 3 बार वो लेटर लिख चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल लगातार एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, कामकाज पर दखल दे रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। और उन्होंने सवाल उठाया कि वो अभी हाल में दिल्ली गए थे, दिल्ली में वो किसके किससे से मिले, क्या उनकी रणनीति रहती है। और कोलकाता में भी, पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने कहा कि जब वो कोलकाता में रहते तो कौन कौन नेता उनसे मिलने जाते, कौन कौन लोगों से उनकी मुलाकातें होती हैं और उसका क्या मकसद होता है, किस तरह उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार ये गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में पश्चिम बंगाल में लड़ाई चलती रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद भी दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई, यानी जो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, उसे लेकर भी लगातार राज्यपाल सक्रिय थे। वो शिकायत कर रहे थे सरकार के कामकाज पर, वो सवाल उठा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर वो सवाल उठा रहे थे और ममता बनर्जी लगातार उन्हें जवाब दे रही थी। लेकिन अब ये मामला काफ़ी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है कि मुख्यमंत्री सीधे गवर्नर को
करप्ट बता रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ जैन हवाला केस में चार्जशीट हुई थी, ऐसे व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया गया, गवर्नर राज्यपाल बना दिया गया, ये बहुत ही गलत है और वो चाहती हैं कि वह ऐसे राज्यपाल को यहाँ से हटाया जाए। और इस बीच खबर ये आ रही है कि शाम 6:30 बजे गवर्नर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाले। ये अपने आप में गंभीर मामला है कि एक राज्य में मुख्यमंत्री गवर्नर के खिलाफ बोल रही हैं और गवर्नर सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। ये अपने आप में वाकई जो हमारे देश का एक ढांचा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको भी एक चैलेंज करने वाली बात। एक और जो मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में हमेशा एक ये गरिमापूर्ण पद माना जाता है। मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन गवर्नर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री ज़रूर उनका सम्मान करती। लेकिन यहाँ पर वो एक जो परंपरा है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको एक चुनौती मिलती हुई दिख रही है। अब ज़्यादा इस मसले पर बात करेंगे हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी जी से हम बात करेंगे। चेतन जी, ये मामला वाकई बड़ा गंभीर समझ में आ रहा है। मुख्यमंत्री सीधे गवर्नर के खिलाफ बोल रही हैं और गवर्नर लगातार राज्य के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ की हिंसा के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेज रहे थे और लगातार जो पोस्ट पोल अलायंस हुई उस पर वो सवाल उठा रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि गवर्नर भी आज मीडिया से बात करेंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा देखते हैं? देखिए, जो ममता बनर्जी और जो गवर्नर है वहाँ जगदीप धनखड़, उनके बीच का जो 33 का आंकड़ा है वो आज का नहीं, खासा पुराना है। दरअसल इसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले हुई थी, जब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का विरोध करना खुलेआम शुरू कर दिया था। तमाम मंचों पर जगदीप धनखड़ जो है वो आभास करा चुके हैं ममता बनर्जी को कि अगर वो कुछ कहेंगी तो उसका रिप्लाई भी उनको मिलेगा। आपको मालूम होगा कि जब अभी हाल में ममता बनर्जी ने जिस समय पर शपथ ग्रहण किया, उसी समय आप बॉडी लैंग्वेज आप याद होगा, शायद आपको उस समय देख रहे होंगे सब लोग कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने एक पाठ पढ़ाने की कोशिश करी और वो पाठ इस वजह से पढ़ाने की कोशिश करी कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बंगाल में हमले हो रहे थे। इसीलिए उनका यही कहना था कि जो ममता बनर्जी हैं सत्ता में आने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने उसका तुरंत ही मन से पलटवार कर दिया, पलट करके जवाब दे दिया और उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल जो है पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में है। ऐसे में कोई वो कार्रवाई मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। तो ये जो एक शुरुआत थी, इससे पहले भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो 3 बार केंद्र सरकार को जगदीप धनखड़ को हटाने के लिख चुकी हैं। और भी इसके अलावा कई ऐसे मामले रहे। पिछली बार आपको याद होगा कि चुनाव से पहले एक बार धनखड़ ने, जो राज्यपाल है वहाँ के राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू करने से चुनाव से ठीक पहले खासा प्रयास करा। केंद्र सरकार से कई दौर की मुलाकात भी हुई, बैठकें का दौर चला, हवा उड़ चुकी थी कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी। लेकिन चुनाव से पहले ममता दीदी ने कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि केंद्र सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सके। इसके बाद से ही लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि किसी तरीके से ममता दीदी को कमज़ोर किया जाए। चुनाव से पहले भी तमाम तरह की लामबंदियाँ हुई, तमाम सारे नेता जो टीएमसी के थे वो वहाँ से खिसक करके बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के समय में भी केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ममता दीदी को हरा पाना मुश्किल हो गया। फुल मेजॉरिटी के साथ ममता दीदी की सरकार बनी। उसके बाद से जिस समय मंच पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समय भी एक पाठ पढ़ाने की कोशिश करी थी राज्यपाल ने ममता बनर्जी को, और यही बताने की कोशिश करी थी कि जो राजनीतिक द्वेष की भावना है उससे हट करके मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए और सभी जात धर्म के लिए उनकी सोच बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। ये भी उनका एक कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल के हों, सबके लिए मुख्यमंत्री का समान बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन वहीं पर ही तुरंत अटैक कर दिया ममता बनर्जी ने और साफ कहा कि चूँकि अभी तक जो जितने भी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं या बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो हमला हो रहा है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार उसके कमान पूरे हाथों में केंद्र सरकार के, इसलिए उसने क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की।
इसी को देखते हुए लग रहा था शुरुआत से ही, जिस अब की बार जो ममता बनर्जी तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी, उनका जो तेवर थे वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं विरोध के, और वो हर मंच पर अब वो केंद्र सरकार का विरोध कर रही हैं। आज के मंच पे भी आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने सबसे पहले जगदीप धनखड़ पर जो राज्यपाल का एक बड़ा संवैधानिक पद है उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इतना ही नहीं, उनको ये भ्रष्टाचारी तक कह दिया, और उन्होंने कहा कि जो घोटाला हुआ है 1996 में उसमें भी उनका नाम आया था। ये तमाम सारे ऐसे आरोप उन्होंने लगा दिए आज, जो खासा एक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं, जो एक जो दोनों के बीच में एक तरह का एक गरिमापूर्ण जो भाषा होनी चाहिए उसको गिरा करके एक नए तरीके से एक नई लेख लिखा जा रहा है। इस समय पर हवाला रैकेट में नाम आया था 1996 में, ये तक आज उन्होंने ममता बनर्जी ने कह दिया। अब आज कुछ देर बाद ही, बस सबसे कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जगदीप धनखड़, और संभवतः आज जो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके वो जवाब देंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह पश्चिम बंगाल में गवर्नर बनाम चीफ मिनिस्टर, ये एक धारा चल पड़ी है, और वाकई काफ़ी अच्छे संकेत नहीं किए कहे जा सकते देश के लोकतंत्र के लिए। मुख्यमंत्री सीधे गवर्नर पर आरोप लगा रही हैं, और गवर्नर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी वाकई चिंताजनक है। और देखना होगा कि जब 6:30 बजे गवर्नर मीडिया के सामने आएंगे तो वो ममता बनर्जी के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। और इस पूरे मसले पर एक बात दिलचस्प ये भी रहेगी चेतन जी कि केंद्र की क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी धनखड़ हाल में ही आए थे, 3 दिन दिल्ली में रुके थे, और उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और इस बात का आज ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया कि क्या करने वो गए थे दिल्ली, और यहाँ पर कोलकाता में बैठकर वो क्या करते, कौन कौन लोग उनके मिलने से जाते हैं, और अगर इस पर नज़र रखी जाए तो पता चल जाएगा कि गवर्नर के इरादे क्या हैं। तो कुल मिला के सीधे वो चुनौती देती हुई नज़र आ रही हैं गवर्नर को, और अब हमारी नज़र बनी रहेगी कि 6:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर इन सब आरोपों के क्या जवाब देते हैं। धन्यवाद, आप देखते रहिए MCD न्यूज़।